بتائیے آپ، ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بنڈی پر فروٹ بیچ رہا ہے گندے طریقے سے، معلوم ہوا وہ ویڈیو جھوٹا ہے۔ ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو، یوٹینسل کو چاٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ ہمارے ممبئی کے، ہمارے بھوری سماج کے لوگوں کا یہ ان کا طریقہ ہے، ایک ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، آپ اس کو جوڑ دیے، غلط۔ پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے، پڑوسی ملک کا ہے، نکال کر بتا دیے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے، اس سے وائرس پھیلا رہا ہے، پرانا ویڈیو۔ پھر ایک فلپینز کا ویڈیو نکال دی کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریڈ کے اوپر تھوک رہا ہے، یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا۔ اب ایک ویڈیو نکالے، یہ تمام دشمن جو ملک کے دشمن ہے جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے، وہ اس کو بتا دیے تبلیغی جماعت کا ہے، وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے، پرانا ویڈیو، اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں، کیا جھوٹ ہے۔ اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا۔ کرناٹکا کے ایک بی جے پی ہے، محترمہ ایم پی ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو انہی کے ریاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، محترمہ سنیے، بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر ایس پی بھون حالی نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو، جھوٹ آپ کا۔ پھر زی نیوز نے رپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں، فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا، آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ پھر رائے پور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا، معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائے پور میں ایسا کر رہے ہیں، ایمس رائے پور نے بیان جاری کیا، یہ بیان جھوٹا ہے ان کا۔ ریوا میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ اور پھر لکھنؤ پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسز سے بدسلوکی کی، یہ بھی دیکھیے۔ پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک اینکر ہے بیچارہ، مشہور ہے، نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے، اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے، ڈی سی پی نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معیاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت پڑھتا ہوں، ہندوستان ٹائمز، کہتا ہے کہ جہاں پر نان مسلم کا معاملہ آتا وہاں مائیگرنٹ ورڈ استعمال کیا جاتا، ورکرز ولیجز، اور جب مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا نام لگائے تھے۔ آپ بتائیے۔ اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ such targeting of a particular community religious organization will lead to communal polarization۔ گورنمنٹ آف انڈیا اگر مودی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائنورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت is Talibanizing the virus، کہ تبلیغی جماعت طالبان کی طرح اس وائرس کو پھیلا رہے ہیں، روکیے نا ان کو۔ آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے، وزارت اقلیتی بہبود کا منسٹر۔ اور کیا ہوا؟ جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تبلیغی جماعت والوں سے آپ نے پھیلائی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیکھیے آپ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک جو فروٹ میوہ بیچتے ہیں، فروٹ وینڈرز ٹھیلا بنڈی پر اتراکھنڈ میں، ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو، تم سے وائرس پھیل سکتا ہے، تم یہاں پر بنڈی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوؤں کو وائرس دے دو گے۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اتراکھنڈ کا واقعہ یہ۔ پھر دوسرا واقعہ، شاستری نگر بی بلاک میں لوگ بیٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر، جو ٹھیلا بنڈی پر لوگ غریب آتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے، تو مسلمان ہے، ملا ہے، مت آ یہاں پر، بتائیے آپ۔ پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا، محمد دلشاد کا، یہ ہماچل کا محمد دلشاد، اونا بنگر ولیج کا، یہ مراسی کمیونٹی سے تعلق، مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق، محمد دلشاد کا، 37 سال کا لڑکا۔ کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا، کوارنٹائن میں رہا،
रिपोर्ट नेगेटिव आई उसको उसके गांव में, ये मरासी बिरादरी वाले शादी में बैंड बाजा बजाते हैं, सब लोग जानते हैं उसको गांव में, इतना उसको तंग किए, इतना तंग किए कि वो खुदकशी कर लिया। 37 साल मोहम्मद दिलशाद खुदकशी कर लिया। यही चाह रहे आप लोग? खुश हो रहे हैं क्या लोग इस तरह की हरकत करके? फिर आप देखिए, फिर इरफान खान नामी एक शख्स राजस्थान का 34 साल का भरतपुर में अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को वो लेकर जाता है डिलीवरी के लिए। लेबर रूम में चली जाती है उसकी बीवी, और वहां पर जाकर जब उससे पूछा जाता है कि तुम मुसलमान हो, तो कहता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं। तो डॉक्टर्स मशवरा कर कहते हैं कि इसको निपटाओ, ये मुसलमान की डिलीवरियां नहीं हो सकती। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इरफान खान की पत्नी जो प्रेग्नेंट है उसको एम्बुलेंस में डालकर कहते हैं जयपुर को लेकर जाओ। एम्बुलेंस में बच्चा पैदा होता और बच्चा मर जाता। बताइए आप ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये कौन सी इंसानियत के मजारे आप और हम कर रहे हैं? और फिर 22 साल महबूब अली, उसको दिल्ली के बवाना में इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो भोपाल से तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाकर आया। वो अभी जिंदगी और अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल में। ये महबूब अली। अब गुड़गांव में एक मुस्लिम फैमिली को ईंटों से मारा गया क्योंकि वो लोग वीडियो ले रहे थे जो दिया जलाओ का, जो वजीर आजम ने कहा था, ईंटों से उनको पीटा गया सिर्फ वीडियो लेने पर। फिर गुड़गांव के धनकोट विलेज में किसी ने आकर मस्जिद के सामने फायरिंग कर दी, और जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों फायरिंग की, तो उस मारने वाले ने कहा कि मैं ये देखना चाह रहा था कि मस्जिद के अंदर जो बैठा है उसको वायरस हुआ नहीं हुआ। ये इस तरह की हरकत। फिर कर्नाटका में मुस्लिम वॉलंटियर जाकर स्लम में खाना दे रहे हैं गरीबों को, तो एक एक्टिविस्ट जरीन ताज को बेंगलुरु में उन पर हमला किया गया और उनसे कहा गया कि तुम क्यों आए हिंदू एरिया में? अरे मेरे दोस्त, भूख, गरीबी, वायरस मजहब को नहीं देखती। अगर कोई मुसलमान को हिंदू जाकर या हिंदू को मुसलमान को जाकर खाना खिलाता है तो कौन सा गुनाह किया उसने? मगर आप मार रहे हैं। हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान फैमिली को उनके पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए मारा और पीटा क्योंकि उन्होंने दिया नहीं जलाया था। सर फोड़ दिया गया उन लोगों का। और विलेज प्रधान भी हस्ब रिवायत मुसलमानों के खिलाफ गए। पंजाब में दूध बेचने वाले, उनको मारा और पीटा गया। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में वो नदी के दामन में फंसे हुए हैं, आज भी नहीं निकल सकते। गुज्जर कम्युनिटी के हैं, दूध नहीं बेचना, तो उनको मारा और पीटा गया। फिर वैसे ही बागलकोट में एक मुसलमान को जो मच्छी पकड़ने के लिए कृष्णा रिवर में गया, उसको मारा और पीटा गया। वही बागलकोट में गुंडे घुसकर मस्जिद के अंदर हमला करते हैं, मारते हैं। फिर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में 2 मस्जिदों को तोड़ा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है जब 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने का ऑर्डर आया। पूना में पोल्ट्री फार्म में मुसलमान ड्राइवरों का नहीं दिया जा रहा है, नहीं, आपसे वायरस फैल सकता है। आप बताइए कि कोई इस बारे में यह नहीं कहता कि भाई वायरस किससे फैल रहा है, वायरस कहां से आ रहा है, वायरस का कोई मजहब है क्या? आप बताइए कि 13 मार्च को हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या स्टेटमेंट दिया कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं है कहा गया। 13 मार्च को दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसके चीफ मिनिस्टर अभी विजीत किया है, उन्होंने कहा कि गैदरिंग पर बैन है मगर रिलीजियस कांग्रीगेशन पर कोई बैन नहीं है। इसीलिए दिल्ली की कालका जी मंदिर में 21 मार्च तक चलता रहा। फिर आप देख लीजिए वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में 18 मार्च तक बंद नहीं किया गया, वहां भी 400 लोग फंसे हुए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। और कोई मस्जिद में फंसा हुआ है मरकज में तो वो छुपा हुआ है, ये आपका इंसाफ है। तिरुपति में 16 मार्च तक चलता रहा। फिर 23 मार्च को
शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया मध्य प्रदेश में, हजारों लोग वहां पर आए, उसके कोई बात नहीं करेंगे, टीवी पर कोई बात नहीं होगी उसकी। और फिर हजारों लोग निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आए, वो बेचारे गरीब कमजोर लेबरर्स जो भूख और फाका से मर रहे थे, निकलकर रोड पर निकल कर आए, उस पर कोई किसी को मजहब नहीं जोड़ा गया। जब आप देखिए कि 22 मार्च को थाली का इवेंट हुआ, रोडों पर निकलकर लोग नाचे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर एक हमारे सिख एक बलदेव सिंह साहब है, 11 और 13 मार्च को होला मोहल्ला फेस्टिवल हुई, वो उनकी वजह से कई लोग क्वारंटाइन हो गए, हजारों लोग, उस पर कोई टीवी के लोग बात नहीं करते। और फिर एक गाने ग्लोकारा है कनिका कपूर, लखनऊ में वो मोहतरमा जाती हैं तो बीजेपी के एक एमपी हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाश्ते की दावत में एमपी पहुंच जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उसमें। और फिर यानी इतने कितने मिसालें दूं आपके सामने, कितने मिसालें आपके सामने दूं। एक एक चीज आपके सामने बता रहा हूं कि बस पीछे पड़े नहीं, तबलीगी जमात, मरकज, इस्लाम, मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि क्या पहली जनवरी से 15 मार्च तक हमारे मुल्क में 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल्स हुए, 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल हुए। और फिर ये तबलीगी जमात पर आप तनकीद करते हैं, ये बताइए कि 3 मार्च से हमने स्क्रीनिंग शुरू की, कैसे आगे फिर वो लोग, क्या स्क्रीनिंग की आप लोग, कौन जिम्मेदार है उसका, ये सवाल कोई नहीं उठाएंगे। और फिर 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू किया कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिन के लिए उन लोग के लिए जो यूएई से, कतर से, ओमान से, कुवैत से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का तो 18 मार्च से शुरू हुआ। फिर क्या ये बात सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया कि 1 in 3 migrants could be infected and they should not pass on the infection in villages. However, it is also mentioned that 6 lakhs people were put in shelters. 6 लाख लोगों को शेल्टर में रखे, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग, बताइए फिर आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है। आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपका मुखालिफ हूं और रहूंगा जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला, मुझे फख्र है आपकी मुखालिफत पर, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम खामोश बैठे रहे। आज आपकी हुकूमत एक नोटिस जारी कर, बयान जारी करती है, मगर इतने दिनों में कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई, मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। आखिर ये नफरत क्यों? इस मुल्क में अगर इस वायरस को खत्म करना है तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, हम सबको एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं और यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत मत फैलाइए, ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता। यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी हो सकती है मेरी अगर मेरे घर को कोई आता है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई कोरोना जिहाद। ये कोरोना जिहाद क्या होता है मेरे भाई? कोरोना जिहाद को आप जोड़ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा दिए उसको। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क को मजबूती का काम नहीं कर रहे ऐसा काम करके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।